Hello everyone, this is CA Shakhar Tulsian. In this channel, we are going to talk about all the commerce related concepts, be it for class 11, 12, for BCom, for any professional course like CA, CS or CMA. Basically, all the commerce related concepts will be discussed in this channel and all the commerce related queries will be solved. So if you have any query related to commerce, please write it down in the comment section and I'll try to make a video on that. Friends, this is my first video, so कुछ audio issues हो सकती हैं, for which I want to apologize and I try to make it up from my next videos. There's one more thing which I'd like to add. I will teach very slowly because काफ़ी सारे students ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीरे धीरे समझते हैं. So for them, I'll teach very slowly and जिन लोगों को ये वीडियो स्लो लगे so please put it on 1.5x or 2x. So let's not waste any more time and start the video. So in this video, we will be discussing about depreciation. So basically the learning objectives will be what is depreciation, what are the causes of depreciation, what are the objectives of charging depreciation, what are the factors that affect the amount of depreciation, depreciation के क्या क्या types होते हैं, methods होते हैं, and at last what is the accounting for depreciation. That means how do we account for depreciation in our books of accounts and how do we present it in the financial statements. So let's move on to our first topic, that is what is depreciation. Friends, basically depreciation means decrease in the value of fixed assets due to their use in business, passage of time और obsolescence. तो depreciation क्या होता है? बिजनेस के जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में जब डिक्रीज होता है उस रिडक्शन इन वैल्यू को डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ये जो रिडक्शन इन वैल्यू है ये बहुत से रीजंस की वजह से हो सकता है विच वी विल डिस्कस. बट फर्स्टली आप ये जानें कि डेप्रिसिएशन basically in simpler terms means the reduction in value of the fixed assets of business. Okay, so now let me correct myself. Why and where? Let me correct on this point, fixed assets. So guys, यहाँ पर जो term use होना चाहिए, the term should not be fixed asset, the term should be depreciable asset. तो ये depreciable asset क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. तो बेसिकली यहाँ पर फिक्स एसेट्स टर्म यूज नहीं हो करके डेप्रिशिएबल एसेट्स यूज होना चाहिए. आई रोट हियर फिक्स्ड एसेट पर्पसफुली, इंटेंशनली, एंड उसका पर्पस ये था कि आप लोगों से भी ये मिस्टेक ना हो, आप ये देख पाए कि आप ये हमेशा याद रख पाए कि फिक्स्ड एसेट्स नहीं होता है, डेप्रिशिएबल एसेट होता है. व्हाई you will get to understand in our next topic, which is which is depreciable assets. So guys, basically depreciable assets are those assets which are expected to be used during more than one accounting period, which have a limited useful life, and which are held by an enterprise for the use in production or supply, for rental and for administrative purpose, but not for the purpose of sale in the ordinary course of business. Okay. तो बेसिकली डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट होते हैं जो कि बिजनेस में एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए यूज़ होंगे, जिनकी एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ होगी, एंड जो बिजनेस में प्रोडक्शन पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ होंगे, ना कि फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. नाउ यू विल से कि ये तो फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन हुई. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिशिएबल एसेट? Let me tell you, land is not a depreciable asset. Rest all fixed assets are depreciable assets. Example, machinery, furniture, office supplies. So guys, the takeaway from this point is land is not a depreciable asset. Land is a fixed asset, but it is not a depreciable asset. What does this mean?
दिस मीन्स कि लैंड के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। वाई? आप एक बात बताओ, आई टोल्ड यू कि डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो एसेट्स बिजनेस में यूज होती हैं उनके वैल्यू में रिडक्शन होता है, लैंड के वैल्यू में रिडक्शन नहीं होता। लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट करती है, ना कि डेप्रिशिएट। दैट्स व्हाई वी डोंट डेप्रिशिएट लैंड। Our next topic for discussion is what are the causes of depreciation? Depreciation आखिर होता क्यों है? So we will be discussing three major points that are wear and tear, passage of time, and obsolescence. So first of all, we will discuss wear and tear. So wear and tear basically fixed assets are purchased for use in the business. Due to constant use of fixed assets in business for generating income, the value of such assets is decreased. It is called wear and tear. It is main cause of depreciation. तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बता दूं, किसी भी एसेट को यूज करते रहने से उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो जाता है। जैसे आप सपोज जो आप फोन यूज कर रहे हैं, द डे यू बॉट इट एंड आफ्टर 2 और 3 years वो फ़ोन सेम नहीं रहता, उसके वैल्यू में भी डिक्रीज हो जाती है, उसकी फंक्शनैलिटी में भी डिक्रीज हो जाती है, वो परफॉर्मेंस वैसा नहीं दे पाता जैसा वो अपने फर्स्ट डे या इन द फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज दे रहा था। तो दैट इज बेसिकली वियर एंड टियर। द सेकेंड पॉइंट इज पैसेज ऑफ टाइम। होता क्या है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस एसेट की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इकोनॉमिक वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैसेज ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट इज ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलीट होना मतलब आउटडेट हो जाना, पुराना हो जाना, उसके जगह पर नया कुछ आ जाना। तो बेसिकली दिस इज अ टर्म विच इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब भी कोई नया इन्वेंशन होता है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो जाती है, तो उसे हम ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। ओके, so now we have discussed what are the causes of depreciation. We will now discuss what are the objectives of providing depreciation. इसका मतलब हुआ हम depreciation क्यों provide कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, depreciation हम provide करते हैं to ascertain the true and fair profits, to show the asset at its proper value, to make arrangement of funds for replacement of fixed assets, ascertaining accurate cost of production, to comply with legal provisions, to avail tax benefits. So let's discuss each and every point one by one. First point है हमारा to ascertain the true and fair profits. Basically जैसा मैंने आपको बताया, depreciation एक एक्सपेंस होता है, एक खर्चा होता है बिजनेस का, बट ये खर्चा नॉन कैश नेचर का होता है। इट मीन्स इस खर्चे के लिए बिजनेस को कैश का आउटफ्लो नहीं करना पड़ता, तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, बट है तो एक्सपेंडिचर। एंड आप लोगों को ये बात पता होगी कि प्रॉफिट जो किसी भी बिजनेस का अराइव किया जाता है, एसर्टेन किया जाता है, उस प्रॉफिट को एसर्टेन करने के लिए जितने भी बिजनेस के इनकम हुए हैं पर्टिकुलर ईयर में, उसमें से बिजनेस के सारे खर्चे को माइनस किया जाता है, तब जाकर के हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो अगर हमें ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालना है तो हमें खर्चों को डिडक्ट करना होगा, जिसमें हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू शो द एसेट एट इट्स प्रॉपर वैल्यू। एज आई टोल्ड यू अगेन, कोई भी एसेट जो होता है फिक्स्ड एसेट या फिर डेप्रिशिएबल एसेट कहे, उसकी वैल्यू में रिडक्शन होता है। तो अब अगर हम अपने बैलेंस शीट में उस एसेट को उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाएंगे तो वो गलत रहेगा, बिकॉज उसकी वैल्यू में तो रिडक्शन हो चुका है। सो वी विल हैव टू शो द एसेट एट इट्स प्रॉपर वैल्यू, एट इट्स रिड्यूस्ड वैल्यू। थर्ड है टू मेक अरेंजमेंट फॉर फंड्स
और रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। होता क्या है बिजनेस में, बिजनेस जब भी किसी एसेट को डेप्रिशिएट करती है उसके काउंटर पे वो एक प्रोविजन बेसिकली अक्यूमुलेट करती है फंड्स, सो दैट जब वो एसेट पूरी तरीके से यूजेबल ना रहे तो जो फंड्स अक्यूमुलेट हुए हैं उन फंड्स को यूज करके वो एक नया एसेट बना सके, आई मीन बेसिकली खरीद सके। नेक्स्ट इज ascertaining accurate cost of production. This point is very much similar to ascertain the true and fair profits. होता क्या, अगर हम प्रोडक्शन का कॉस्ट ascertain कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितने भी खर्चे लगते हैं कंपनी के वो सारे ऐड होते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो इसे ऐड करना होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंप्लाई विथ लीगल प्रोविजंस। व्हाट, तो बेसिकली जो हमारा लॉ है जो कंपनीज को गाइड करता है या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो अदर देन कंपनीज के लिए भी हैं, दे बेसिकली मैंडेट डेप्रिसिएशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। बेसिकली मेरा बोलने का ये मतलब है कि अकॉर्डिंग टू लॉ वी नीड टू डेप्रिशिएट आर फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो हमें उन लॉ को अबाइड करना है, उन लीगल प्रोविजंस को कंप्लाई करना है, दैट्स व्हाई वी नीड टू डेप्रिशिएट। एंड द लास्ट वन इज टू अवेल टैक्स बेनिफिट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है वो डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस हमें अलाउ होती है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो हमारा हेड होता है इनकम, उसमें अपना इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए दिस एक्सपेंडिचर इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर, तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। So we are done with this topic. The next topic is what are the factors that affect the amount of depreciation. So guys, this is a very important topic. Assessment of depreciation and the amount to be charged in respect thereof in an accounting period are usually based on the following three factors. Depreciation का amount क्या होगा वो basically depend करता है इन तीन factors पे। पहला factor है historical cost or the amount substituted for the historical cost of the depreciable asset when the asset has been revalued. तो historical cost मतलब होता है जिस cost पर कंपनी उस fixed asset को purchase करके लाई है वो cost। नेक्स्ट पॉइंट है expected useful life of the depreciable asset। उस asset को कितने टाइम तक, कितने ईयर्स तक या कितने टाइम तक बेसिकली कंपनी यूज करने के लिए एक्सपेक्ट करती है, वो टाइम पीरियड। एंड द थर्ड वन एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट, जब उस डेप्रिशिएबल एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी, जब वो यूज करने लायक नहीं बचेगा, तो उस समय अगर हम उसे बेचने जाते हैं मार्केट में तो हमें उसके बदले कितने पैसे मिलते हैं, तो वो एक वैल्यू भी हमें डिटरमिन करनी है, एंड दैट विल प्ले अ मेजर रोल in deciding the amount of depreciation. Now we will discuss what are the methods of providing or allocating depreciation. So basically guys, there are two important methods that are followed all over the world. The first one is straight line method and the second one is written down value method. We will discuss in detail on both the methods. The next one is basically the other methods. I have jotted down the other methods of depreciation which are practiced. They are sinking fund method, annuity method, insurance policy method, revaluation method, depletion method, and machine hour rate method. So guys, these methods are not as popular as the first two important methods, as I told, the straight line method and the written down value method. So we won't be discussing on these methods because firstly these are not that important, and secondly it will take a lot of time to discuss all of these methods. So if you want to know about any of the method, so kindly comment so that I can make a video on that. So we will proceed with the first two important methods.
The first method is straight line method of depreciation. So I won't basically I'll be explaining the method in very simpler terms to you. स्ट्रेट लाइन मेथड में बेसिकली ये होता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसे हमें फिक्स्ड डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं जो भी एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसके ऊपर में एवरी ईयर. अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज बाय अ गिवन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट एवरी ईयर. तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो हर साल एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर में ही चार्ज किया जाएगा. उस ओरिजिनल कॉस्ट के अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा. ड्यू टू दिस रीजन डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है हर साल वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, एक अमाउंट फिक्स हो जाता है और इसीलिए इस मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं. आपको आने वाले एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली है क्या. इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं बिकॉज डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाता है. एंड if the rate of depreciation is not given, then annual depreciation and rate of depreciation is calculated by applying the following formulas. तो basically जो depreciation का amount है वो ये annual depreciation का amount ये हम कैसे calculate करते हैं, जो भी asset की cost है उसमें से हम उसके scrap value मतलब जो at the end of the useful life जो हमें बेच करके पैसा मिलेगा वो डिडक्ट करके उसे number of years में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाता है. और अगर हमें इस डेप्रिसिएशन का रेट निकालना हो तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल. एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमारा यहाँ पर आया था इसे हम कॉस्ट ऑफ एसेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. So the example that I have taken is a firm purchased a machine. So machine is a depreciable asset. Okay. So a firm purchased a machine for rupees 2,30,000 and spent installation charges of rupees 30,000. Its economic life is 10 years and estimated residual value after 10 years is rupees 40,000. Charge the depreciation by SLM method. तो बेसिकली इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि एक फॉर्म है, एक बिजनेस है जिसने एक मशीन परचेज की है फॉर ₹2,30,000 और उसने अपने इंस्टॉलेशन पर 30,000 और खर्च किए हैं. तो एज वी ऑल नो कॉस्ट जो होती है एसेट की वो सिर्फ परचेज प्राइस ही नहीं बल्कि उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस को भी इंक्लूड करके ली जाती है बिकॉज द रूल सेज कि किसी भी फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट बिजनेस में ली जाती है दैट कॉस्ट इज टेकन अप टिल द पॉइंट व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज. ठीक है, बेसिकली इट इज बॉट टू द प्रेजेंट लोकेशन एट द प्रेजेंट कंडीशन. तो 2,60,000 रुपये हमारा एसेट का कॉस्ट हो गया. यूजफुल लाइफ आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है 10 years एंड स्क्रैप वैल्यू वो बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है 40,000 रुपीज. So we will now calculate the annual depreciation, which I already told you. The formula is cost of the asset less the scrap value divided by the number of years. That comes up to 22,000 rupees of depreciation annually. So we will charge 22,000 rupees of depreciation every year. The next is rate of depreciation. So as I told you, हम एनुअल डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट से और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. सो वी विल गेट अ परसेंटेज अमाउंट दैट विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. सो नाउ आई विल शो यू हाउ स्ट्रेट लाइन मेथड लुक्स ऑन अ ग्राफ. So basically when depreciation charged in various years is put on a graph, it gives a straight line parallel to the x-axis, and due to this reason this method is called the straight line method. आप देख सकते हैं ईयर 0 हो, ईयर 1 हो, 2, 3, 4 हर एक ईयर आने में डेप्रिसिएशन जो था वो 22,000 रुपीज पे कांस्टेंट था. That's why this method is called a straight line method. We will be discussing now about the merits of this method. So इस method के क्या फायदे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड जो आप लोगों को समझ में भी आया होगा. कुछ नहीं करना है,
कॉस्ट लेना है, स्क्रैप वैल्यू लेस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है, एंड वी विल गेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट. So it is a very simple method. Again, the next point is asset is completely written off. इस पॉइंट को हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे. तो बेसिकली ये पॉइंट बोलता है कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ जो एसेट है वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जाता है बिजनेस से. बिजनेस में वो एसेट फिर एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, सिर्फ वो स्क्रैप वैल्यू रह जाती है जिसे हम बेच करके खत्म करते हैं. नो विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग बेसिकली मतलब होता है कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. तो अगर ये मेथड इतना सिंपल है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है, तो प्रॉफिट पे हर साल इक्वल इफेक्ट आता है. तो इसी वजह से प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं. दैट्स व्हाई नो विंडो ड्रेसिंग. एंड द लास्ट मेरिट इज नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड. हमें पता रहता है कि हमारा ओरिजिनल कॉस्ट क्या था हर साल, क्योंकि हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज करना है, एंड द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड बिकॉज वो फिक्स्ड है. ओके, सो नाउ वी विल सी द टेबल which I was talking about. So आप यहाँ देखिए, उस एग्जाम्पल को ही मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया है. 10 साल का क्वेश्चन था, 10 years यूजफुल लाइफ थी. दी ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 2,60,000 रुपीज, जिसमें से हमने फर्स्ट ईयर में 22,000 डेप्रिसिएशन लेस किया, तो उसका जो क्लोजिंग अमाउंट आया वो आया 2,38,000. अब ये क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू इसका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, एंड सेम फिक्स्ड अमाउंट हम लेस करेंगे. वाई? बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड मेथड, बिकॉज फिक्स्ड amount of depreciation is charged every year. As you can see, हर साल 22,000 rupees less हो रहा है, and at the end of the 10th year the amount that is left is 40,000 rupees, जो आप रिकरेक्ट कर पाओगे कि ये स्क्रैप वैल्यू है. So basically we have justified the point number 2, that is asset is completely written off. Asset completely write off हो चुका है बिजनेस में से. अच्छा, अब अगर हमने इस मेथड के कुछ मेरिट्स की बात किए हैं, तो वी विल श्योरली डिस्कस अबाउट द डिमेरिट्स आल्सो. ओके, सो फर्स्ट डिमेरिट इज अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम. कह रहे टोटल चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ यूजिंग फिक्स्ड एसेट्स कंप्राइजेस डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयरिंग चार्जेस. अंडर एसएलएम डेप्रिसिएशन चार्ज इज फिक्स्ड बट रिपेयरिंग चार्जेस गो ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, thus टोटल चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो बेसिकली होता क्या है, जो एसेट होता है, आप एक बात मतलब बहुत ही ये प्रैक्टिकल बात है, अगर किसी एसेट को हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उस एसेट में रिपेयरिंग के खर्चे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे टाइम जाता है. तो अगर डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स्ड है हर साल, एंड रिपेयर्स के खर्चे देखिए फर्स्ट ईयर में नील रहेंगे, सेकेंड ईयर में 1,000 रुपये आएगा, थर्ड ईयर में 3,000, फोर्थ ईयर में 5,000. सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि फर्स्ट ईयर में नील, और धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर्स पास ऑन होते हैं खर्चे बढ़ते जाते हैं रिपेयर्स के, बट डेप्रिसिएशन तो आपका फिक्स है. तो जो टोटल चार्ज है वो आपका बढ़ रहा है, 20,000, 21,000, 23,000, 25,000. तो उस एसेट के वजह से इनकम पे अनइक्वल चार्ज जो है वो लगता है. तो ये एक डिसएडवांटेज है, और इस वजह से ही हमारा दूसरा डिसएडवांटेज आता है अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स. तो अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड द टोटल चार्ज अगेंस्ट द इनकम goes on increasing year by year while efficiency of the asset goes on decreasing, thus the pressure in later years is unduly high. तो क्या होता है, मशीन एक तो परफॉर्मेंस कम हो रही है धीरे धीरे, एंड उसके ऊपर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं. तो बेसिकली ये बहुत ही प्रेशर हो जाता है बाद के कमिंग ईयर्स में. So we have understood the straight line method. Now we will get to know about the WDV or written down value method. So basically under this method depreciation जो चार्ज करते हैं उसका रेट फिक्स्ड होता है. SLM में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड था, यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रहेगा ऑन द ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, दिस बैलेंस इज रिड्यूस्ड एवरी ईयर, thus the amount of depreciation also goes on reducing year after year.
Thus, it is clear that under this method, value of asset as well as depreciation charged goes on reducing every year. Due to this reason, this method is also called reducing installment method. The value of asset left after charging depreciation is called written down value. Due to this reason, this method is called written down value method. The rate of depreciation charged under this method is higher than that charged in straight line method. So basically मैं आपको बता दूं बहुत ही सिंपल टर्म्स में होता क्या है. सपोज इन WD मेथड सपोज 10,000 की मशीनरी थी. फर्स्ट ईयर में हम उसके ऊपर 10% ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सो इट विल अमाउंट टू 1,000 रुपीज. सो क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा 9,000. नाउ एज आई टोल्ड यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी फिक्स्ड. सो अगेन हम क्या करेंगे, वो 10% अब हम चार्ज करेंगे 9,000 के ऊपर में जो हमारा क्लोजिंग WTV था. सो दिस टाइम द डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी 900 रुपीज. तो आप नोटिस करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन अमाउंट फिक्स्ड था बिकॉज हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर में 10,000 के ऊपर में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे. बट इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होते जाता है बिकॉज हम लोग WDV रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. इसीलिए इस मेथड का नाम है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड. तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करें. तो बेसिकली गाइस दिस इज द फॉर्मूला. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 1 माइनस स्क्रैप बाय कॉस्ट अंडर रूट दी यूजफुल लाइफ इन 200. तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो क्या होगा, हम स्क्रैप डिवाइडेड बाय कॉस्ट करेंगे, उसका यूजफुल लाइफ का रूट लेकर के उसको 1 से माइनस करेंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मैं आप लोगों को बता दूं बेसिकली एग्जाम्स में या तो ये रेट दिया हुआ रहता है या फिर ये रेट निकालना बहुत ही सिंपल है. सो इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज यू हैव द फॉर्मूला एंड you will have all the values, so you will simply calculate the rate. Okay, so I have taken example over here also. The number of useful life was 5 years. The scrap was 31,250 rupees and the cost was 77,760. So the rate comes up to 16.67% from the formula itself, from this formula only. So if we will put scrap as that at that value, the cost at that value, n equals to 5, and you will calculate this, it will come up to 16.67%. Now we will see the table also. तो आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में 77,760 है, इसके ऊपर 16.67% का रेट लगा एंड द डेप्रिसिएशन केम टू 12,960 एंड क्लोजिंग 64,800. तो कैलकुलेट विथ मी गाइस. द नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाएगी 64,800 एंड एज आई टोल्ड यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा. सो यू कैन सी 16.67 is the constant rate of depreciation that is being applied. So, अब ये 16.67 हम किस अमाउंट पे चार्ज करेंगे, not on 77,760 but on 64,800, but which will come up to 10,800 and the closing will be 54,000 and so on. So basically after the end of the useful life 31,250 is the closing WDV, which is the scrap value. Now let me tell you one thing. See, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो एसेट है वो फुल्ली राइट ऑफ हो जाता था बिकॉज एसेट की वैल्यू 0 हो जाती थी आफ्टर स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद. बट यहाँ पर इस मेथड में एसेट फुल्ली राइट ऑफ नहीं होता है. नाउ यू विल आस्क कि बट यहाँ पर तो मेरा क्लोजिंग WDV 31,250 बचा, तो ये तो फुल्ली राइट ऑफ हो गया बिकॉज दिस इज ए स्क्रैप अमाउंट. सो if the scrap amount is reduced from this, it will amount to 0. So let me tell you, अगर आप इस को कैलकुलेट करेंगे रेट को, the rate will come up to 16.666666 to the infinity percentage. So which I have taken or which we generally take as 16.67%. तो एक यहाँ पर डिफरेंस आया एंड अगेन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एग्जैक्ट ये ऐसा एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं आएगा, इट विल कम इन पॉइंट्स. तो अगर आप उस पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. मैं एक वर्बल एग्जांपल आपको देता हूँ, यू कैन ट्राई इट एट योर होम. तो जैसा मैंने एग्जांपल लिया था 10,000 का, 10,000 पे 10% लेस किया
तो 9000 आया क्लोजिंग WDV, देन अगर 9000 पे 10% करेंगे 900 तो 8100 आएगा। तो इफ यू विल गो ऑन लाइक दिस यू विल नोटिस कि वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, बिकॉज वैल्यू वो पॉइंट में बहुत ही छोटा अमाउंट हो जाएगा, 0.00000023 समथिंग ऐसा हो सकता है, बट जीरो कभी नहीं होगा। इट विल टेंड टू जीरो बट इट वोंट बी इक्वल टू जीरो, रिमेंबर दिस पॉइंट। So what are the merits of WDV method? So it is simple again. So as you have noticed, this method is also not complex. It is a very simple method. We just have to get the rate. After the rate, we can prepare a table, and you know the calculation will be very simple. The next is equal charge against income. So होता क्या है, under this method depreciation charge is reduced every year while repairing charges are increased, thus the total charge against income remains the same more or less. तो होता क्या है, depreciation हर साल कम होते जा रहा है and रिपेयर का खर्चा बढ़ते जा रहा है। तो इन टोटलिटी अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस खर्चा जो है, टोटल जो खर्चा बिजनेस का उस एसेट के ऊपर पड़ता है वो मोटा मोटी सेम रहता है। तो यहाँ पर एक इक्वल चार्ज बनता है। तो इसी वजह से नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, एंड जो ये WDV मेथड है ये टैक्सेशन अथॉरिटीज अप्रूव करते हैं। इसका मतलब है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आप WDV मेथड फॉलो करें। एक आध कुछ ऐसे केसेस है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए कुछ स्पेसिफिक केसेस है जिनमें SLM इज अलाउड, बट अदर देन दैट WDV मेथड इज अलाउड ओनली। So now, as you can see, we have, based on the examples with assumed repairs and maintenance charges, I have compared the straight line method and the WDV method का total charge. So as you can see in the straight line method, first year में 9302 depreciation था, repair 0 था, तो total ये हुआ, and we can see the total खर्चा is increasing, and in this WDV method we can see the depreciation is decreasing, the repairs is increasing, so the total cost is more or less same, 11,000 के आसपास में ही रह रहा है, बट यहाँ पे we can see 9,000 10,000 11,000 13,000 14, it is constantly increasing, बट इधर मोटा मोटी 11,000 के अराउंड ही रह रहा है। Okay, so now we can talk about the demerits of WDV method also. So firstly, difficulty in determining the rate of depreciation. As you have noticed, the formula is, I won't say it is complex, but it is not simple also, because we have to take the root over of the useful life. Suppose the useful life is 5 years, so we'll have to take the fifth root of the amount. So basically, it is somewhat difficult. Next is asset cannot be completely written off, as I told you guys. Under diminishing balance, the value of asset is not completely written off. The asset account continues in the books, maybe a very small amount, even after the asset becomes obsolete and useless. तो asset का जो है वो books में रहता है। Okay. So this no, I'm sorry. So this was the demerit of WDV method. So now we will move on to the accounting part, the accounting for depreciation. So first of all, we can see the journal entry for depreciation. Okay. So guys, as I have told you, depreciation is an expense. तो अगर खर्चा होता है बिजनेस में, एंड इफ द एक्सपेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायमंड रूल और द मॉडर्न थियोरी और द मॉडर्न रूल। तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है, इफ एक्सपेंस इंक्रीजेस डेबिट द एक्सपेंस, ठीक है, एंड इफ द एसेट डिक्रीजेस देन क्रेडिट द एसेट। एंड यहाँ पर डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, एसेट पे। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि हमारा खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, एंड हमारा एसेट कम हो रहा है, डिक्रीजिंग। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एंड इस खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो व्हाट वी डू इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किए, एंड ये डेप्रिसिएशन को कैंसिल आउट करके हम क्रेडिट करके कैंसिल आउट किए। तो बेसिकली दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। Guys, we will now see how depreciation is shown in the financial statements. So first of all, how it is shown in the profit and loss statement. So here I have you know uh,
jot down a performer for profit and loss. So basically आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल का अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है क्रेडिट साइड में, एंड इन द डेबिट साइड वी हैव परचेज, वी हैव वेजेस, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव जनरल एक्सपेंस एंड वी हैव डेप्रिसिएशन आल्सो. तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, इट इज एन एक्सपेंस, सो वी विल हैव टू डेबिट इट. और जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, तो दिस ग्रॉस प्रॉफिट कम्स आफ्टर reducing all the expenses from the income. Okay, so we'll now see how it is represented in the balance sheet. As you all know, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो होती हैं, एक्सपेंस एंड इनकम नहीं. सो व्हाट इज द रोल ऑफ डेप्रिसिएशन इन बैलेंस शीट? ये एसेट्स, दिस इज द एसेट साइड. आप देख सकते हैं यहाँ बैंक है, कैश है, डेटर्स है. The main point is fixed assets. You can see fixed asset का value 2,60,000 था, but as I explained, जो fixed asset है उसकी value reduce हो चुकी है, so we will have to reduce the value. तो हमने यहाँ depreciation of 22,000 rupees less किया, and the net amount of 2,38,000 is shown in the balance sheet. So guys, this was the video regarding the whole concept of depreciation. I request you to subscribe to the channel to get more knowledgeable content. If you are curious to learn the concepts of commerce, तो please subscribe करें so that मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ you will get a notification for that. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक करें, आपका जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसे कमेंट करें एंड ये वीडियो शेयर करें. थैंक यू so much for the video.